Namaskar. Welcome Namaste, again in Venu. my show. Today I have with me Dhirendra Tiwari. I think his name is very much known to the world of Kathak, and he himself believe like he will be the most blessed disciple. To mention his guru's name, just as his introduction. So he is the disciple, senior most disciple, one of the senior most disciple of Guru Rajendra Gangani ji, and what he is doing because of the social media and all, we all know how good he is and how he is growing up and establishing himself in the field of Kathak. And so I would like to welcome Dhirendra. To call me and asking for this. Thank you so much. Yes, no, I really like your thought, and we all know that your dedication. You are very sincere, hardworking, like a disciple, dancer, and you are proving that. Mm, so I think by this time we already know the topic that we are discussing on the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. So uh, as I am asking everyone, like what is his journey, how it was, like starting from the childhood, what was the acceptance from the family and from the society, like how much support did you get from your family for dancing and also from the society? Uh, since we are talking about the economy system for a dancer, I believe it's a weird, it's a weird answer that I never got a support from family, not in the sense of financially or morally. Let me clear you very frankly. And since I come from a very conservative and orthodox Brahmin family, where academics are something which is main, and you are free, you are allowed to do this dancing, you are allowed to play, you are allowed to do other activities, but it is not something you can take as career. As I was told, as I was initiated into, I mean, जो मेरी previous life है, जैसा भी मानना पड़ेगा उससे, कि ऐसा नहीं था, वो सिस्टम ही नहीं है कि ये डांस कोई एक ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है या खेलना कोई प्रोफेशन हो सकता है, तो वो एक्सेप्टेंस कभी था ही नहीं फैमिली में. एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं शायद डांस कर रहा होऊंगा, बहुत फ्रेंकली बताऊं तो ये मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड एंड अपब्रिंगिंग समवेयर मैटर्स क्वाइट अ लॉट आई थिंक. तो वो अपब्रिंगिंग में ही नहीं था, वो प्रॉब्लम थी अपब्रिंगिंग में ही. मैं एक साइंस मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, उसी से मैं ग्रेजुएट हूँ. और जो घर में था, मेरे बड़े भाई का ट्यूटोरियल होम है, होम था उस समय. ही हैज चेंज्ड हिज बिजनेस लाइक द अदर पीपल, जो जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं वो भी. पर उनका ट्यूटोरियल होम था, फिजिक्स के टीचर थे, भाभी मैथ्स के टीचर थे, और दूसरी सिस्टर अपने बायोलॉजी से उसने मास्टर्स कंप्लीट किया. शी इज इन हरसेल्फ इन अ जॉब रिलेटेड टू हर फील्ड. तो एक ऐसे परिवार से था. हालांकि मेरे माता पिता बहुत ज्यादा एजुकेटेड इतने ज्यादा नहीं थे, शायद उनका सपना इसलिए इतना ज्यादा डीप था कि मेरे बच्चे एजुकेटेड बने और वैसा वाला सिस्टम को फॉलो करें जो वो चाहते थे. तो choosing dance as profession was kind of a cultural shock for my family. That's why they could not digest. Though my mother is very open to the things, she is a great learner, I believe. She imbibes whatever she sees, whatever she notices. उनका एक है, जो भी नोटिस करती है उसे फौरन इम्बाइब करती है और उसको उस पर रिएक्ट भी करती है. लेकिन पापा मेरे नहीं थे. ही वाज वेरी स्टेगनेंट, रिजिड आई शुड से. तो उन्होंने सारे फाइनेंशियल, दो मेरी माय मदर सपोर्टेड अ लिटिल, वेरी लिटिल, व्हाटएवर शी कुड सेव. एक फैमिली में जो एक हाउसवाइफ जो सेव कर सकती है, मेरी बहन जिसे मैं कहूँगा, शी वाज इन अ वेरी स्मॉल जॉब बाय दैट टाइम. She was studying and she was in a small job, but though she was saving, and somehow she helped me through her small savings. And
तो मेरी जर्नी ऐसी शुरुआत की थी जब मैंने डांस को चुना एज प्रोफेशन। और तब भी मैं ये कहूँगा शायद मुझे डांस को एज प्रोफेशन नहीं मान रहा था मैं उसको। जब मैं सीख रहा था आगरा में, एक शौक के तौर पे सीख रहा था। मेरी गुरु हैं आगरा में, गुरु रुचि शर्मा जी, एंड जो अर्जुन मिश्रा जी के पास काफी समय सीखी। और दूसरे गुरु हैं श्री तापोश गिरी जी। तो तापोश भैया और उनका दोनों का अलग अलग सिस्टम था। रुचि दीदी बहुत खूबसूरत डांस में यकीन करती थी तैयारी के साथ साथ। तो तापोश भैया वाज वेरी तैयार एंड मैथमेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द डांस। एंड एक शायद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजों में मजा आता था। और डांस मुझे उस समय एडिक्शन नहीं लगता था, एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज लगता था। कॉन्सेप्ट है इसमें, ये है, इसको मूवमेंट को ऐसे बरतना है, या इसमें मैथमेटिक्स ऐसे चलती है, या फुटवर्क के कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं। जैसे कि मैथ्स में रहता है, कभी एक टाइम पे कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, देन फॉर्मूला बेस्ड बनता है, देन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनता है, जैसे रियल एनालिसिस वगैरह में बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे डांस को वैसे में लेता था क्योंकि उस और समय ये मुझे नहीं कब, पता ये था। उम्र कैसा था, मतलब कौन सी उम्र से तुम ये या आई सीख? थिंक ये 17 17 16 17 Also 18 you मैक्सिमम। started like a very late. क्वाइट लेट। आई मीन तब भी वो भी ऐसी शौक के तौर पे, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग पे नहीं जा रहा था। शायद स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मेरी कथक केंद्र में आके शुरू हुई है। उससे पहले मेरे गुरु बहुत अच्छे थे आगरा में जो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दे रहे थे, पर शायद मेरी समझ बहुत छोटी थी उस समय। मैंने आगरा में फिर एक मेरी सीनियर का डांस देखा, स्वाति सिन्हा, आप जानते होंगे उनको, मैंने डांस करते हुए देखा। तो मुझे लगा दिस स्टेटस ऑफ डांसिंग इज बियॉन्ड द डांस व्हाट आई एम लर्निंग। तो मुझे महसूस हुआ, और ये पैरों को कायदे नाचना, पैरों इतनी तैयारी, और एक परन अगर वो 2 बार नहीं आई तो तीसरी बार भी उसी फोर्स के साथ नाचना, ये मेरे लिए बियॉन्ड था। मतलब फिर देन आई figured out like कि वो गुरुजी से सीखे हैं, उनका ब्रोशर देख के, then I sent a letter, then I got an answer। फिर मैं दिल्ली जाके उनसे मिला। दिल्ली जाकर मैं धीरे धीरे जाकर इस तरह से सीखने लगा। 2-3 बार गया। then गुरुजी maybe he must have seen some kind of passion in me, and he suggested me to take an admission in Kathak Kendra. That's when I realized like yeah, I'm supposed to go. And that time, like in school, in study, which grade you were? I just completed 12th. I was in BSc first year. Okay. जी। And from then तो you joined Kathak Kendra. या इन BSc सेकंड ईयर आई ज्वाइन कथक केंद्र। उसके बाद BSc करने में भी बहुत दिक्कत हुई थी, आना जाना ऐसा था कुछ। So तो you continued your study in like science, BSc. जी। Okay. और Okay. बहुत बुरे तरीके से कंटिन्यू किया फिर उसके बाद। आई बिकेम वेरी एवरेज स्टूडेंट। एनीवे, तो कटिंग इन शॉर्ट, मैं गया केंद्र गया, बट दैट्स वेयर, as I told you, that it was a cultural shock for my family. They never wanted me to go into it. तो मेरे finances जो थे सारे रुक चुके थे उस समय। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि मुझे 1 बरस तक लगभग आगरा से रोज जाना होता था। सुबह बैठता था ट्रेन में, तो मैं जाता था, फिर रात को मैं बहुत लेट नाइट वापस आता था। तो ट्रेन में MSTs होती है, MST बनवानी होती है, महीने का पास होता है पूरा। तो यहाँ से आगरा से दिल्ली करीब, उस वक्त में, अभी तो 3 घंटे की जर्नी हो गई, पर उस वक्त में 4.5 घंटे ऐसे लगते थे। Oh, so you used to come through like from Agra to Kathak Kendra? Oh, how often? In a week? I think at least 4 days in a week में जाता था, 4 to 5 days, क्योंकि यहाँ मेरा कॉलेज भी था, तो एटलीस्ट 2 days मुझे अटेंड करना होता था। प्रैक्टिकल जिस दिन होते थे, प्रैक्टिकल सेशंस में अटेंड करता था। बाकी का स्टडी का इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि ट्रेन में बहुत टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। ट्रेन में क्या करे इंसान, तो वो पढ़ाई ही करेगा। तो वो एक बहुत अच्छा सिस्टम था। तो 4 घंटे आना जाना, तो पढ़ाई वैसे हो जाती थी। और कुछ अगर डाउट्स होते तो संडे को भैया भाभी सभी लोग पढ़ाते ही थे, तो उनसे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। तो इतना उसका प्रेशर पढ़ाई का इसलिए नहीं पड़ा। So during this phase, how did you manage your finance? During this phase, how did you manage? How did you manage? एक्चुअली मैं कई लोग मुझसे पूछते हैं, और ये क्वेश्चन कभी-कभी एक वो कंट्रोवर्सी रेज कर देता है, दैट आई वाज अ बॉलीवुड डांसर।
I used Okay. to learn and I used to do Bollywood a lot. Yes, Hmm. and Saturday, Sunday, I used to teach that. Bollywood, not Kathak Bollywood or something. It never used to exist. Pure Bollywood. Absolutely Bollywood, proper pure Bollywood, and I think more kind of Western. जैसे उस टाइम पे हमारे टाइम पे वो गाने चले करते थे, Backstreet Boys and Dr. Alban, ये सब के एल्बम्स चला Whatever, करते like थे, तो इस typical तरह के उस टाइप Bollywood, के like सॉन्ग. Bollywood. जी Yes. जी. Yeah. तो Okay. मैं वो सिखाता था सैटरडे संडे. पहला तो वो. दूसरा, जब मैं दिल्ली रुकता था या किसी के भी रुक जाता था दोस्त के, तो मैं एक स्टडीज में मदद कर देता था. जैसे मेरे को 1.5-2 घंटे के बीच में टाइम मिलता था, तो फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स जो मेरे सब्जेक्ट थे, मैं वो पढ़ा देता था बच्चों को. क्या बात, तो थोड़ा सा क्या पर बात. बहुत मुश्किल बहुत था वो, ये भी मैं बोलूंगा, क्योंकि उससे उतना फाइनेंसिस नहीं हो पाता है, उतना ठीक है, फाइनेंशियल पर मैनेजमेंट. नहीं ये यही मतलब मेरे जो ये डिस्कशन है ना, इसी से मैं यही मतलब ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक का जो मंजिल होता है वो तो होता है, पर उसको वहां पहुंचने के लिए किस किस को किस किस रास्ते से जाना पड़ता है. पर अगर मंजिल सही है तो वो तो वहां पहुंच ही जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रास्ते तो होते हाँ, हैं. तो जैसे कि अभी तो तुम कथक डांसर ही हो, अभी तो तुम कथक जी ही करते हो, सबको पता है. पर तुम पहले अगर बॉलीवुड किए भी है या फिजिक्स पढ़ाया, वो जो भी था, पर तुम्हारा फोकस था कथक, इसीलिए तुम आगरे से दिल्ली आए. तो नहीं यही मतलब ये जानना जरूरी है, क्योंकि और कितना इम्पोर्टेंट है. मतलब फोकस वो जी था, कथक था, और पर उसको वहां तक जाने के लिए मुझे तो ऐसे ऐसे रास्ता ढूंढना पड़ रहा था, पर उसमें मैंने नहीं जाऊंगा. जी For the time being, I am okay with all those things. But once I am getting जी. the support from the Kathak or something like that, so I am like going to the focus to the destination. Yes, good. जी जी. I like it. No. Very good. थैंक यू. बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि जैसे मुझे बॉलीवुड से डिटैचमेंट होता जा रहा था वक्त के साथ साथ. तो एक साल तो मैंने समहाउ कुछ किया. ऐसा नहीं है डिटैच्ड हूँ या मुझे पसंद नहीं है, पसंद है, बट मेरा डिटैचमेंट एज टीचर होता जा रहा था दूर, बिकॉज कथक को बहुत वक्त चाहिए था भैया. उसको मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद स्टडी भी उतनी कंटिन्यू कर पाऊँ, वो सब भी कर पाऊँ और वो कथक भी कर पाऊँ. मुझे मुश्किल लग रहा था. फाइनली आफ्टर ग्रेजुएशन आई लेफ्ट, एब्सोल्युटली लेफ्ट स्टडीज, एकेडमिक्स, जो उस तरह का एकेडमिक्स, नॉट अदर काइंड ऑफ एकेडमिक्स. मैंने उसको छोड़ दिया. उस वक्त में फिर फाइनेंस मैनेजमेंट की दिक्कत हुई. तो उस वक्त में मुझे आई थिंक कथक केंद्र का सपोर्ट यहाँ पर मैं बहुत कहूंगा. दे यूज टू पे हाउस काइंड, I mean, by the name of house rent facility, they used to pay some amount to the students. तो हाउस रेंट Scholarship फैसिलिटी kind जो of. होती थी, हाँ, काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. तो उसने मुझे सपोर्ट किया दिल्ली में रहने में, जो दूसरे साल से मिलने लगी और मैं दिल्ली में रहने लगा. तो हम लोग 2-3 लोग मिलकर रहते थे इस तरह से, किसी भी तरह से रूम शेयर करके, जैसे भी जो भी मुफलिसी में जैसे भी रहते हैं. पर उस वक्त में फिर मैं सैटरडे संडे आगरा जाना शुरू किया, और वहां पर आगरा के पास में एक जगह, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी सिर्फ कथक केंद्र की एजुकेशन थी, मेरी पहली एजुकेशन भी 2 साल की स्ट्रॉन्ग थी, बहुत कम थी आगरा में, 1.5-2 साल की थी, बट स्ट्रॉन्ग थी. फिर 1-1.5 साल मुझे कथक केंद्र में ऑलरेडी हो गया. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो भी 3-4 साल में सीखा है और स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है, तो शायद एटलीस्ट इतनी एजुकेशन ही मैं इम्पार्ट करना शुरू करूं, तो शायद मैं कुछ ब्रेड एंड बटर कमा पाऊंगा. लोग कहते हैं कि जनरली यू शुड बी वेल एजुकेटेड, यू शुड हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ एजुकेशन बिफोर गोइंग फॉर टीचिंग और एनीथिंग लाइक दैट. पर मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना तो सिखाऊं जितना मैं सीखा हुआ, बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ. You finished your general academic education, no? So you finished that. That's why you are like grown up person. So you have the education जी of जी general बिल्कुल. BSc. So you why I think it is said like जी जी 10 साल सीखने से पहले सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पहले ना किसी का वो एक विषय में उसका वो कुछ नहीं बनता है. उसका जो जी गंभीरता जी है वो समझ में नहीं आता है. पर पढ़ाई जैसे तुम्हारा हुआ जी ना, जी मेरे ख्याल से उसीलिए तुम जब मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तो कुछ भी, क्योंकि देखो अगर हम जैसे कि अभी इसको विचार करने के लिए कि पहला जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहला 10 ग्रेड तक होता है.
10 ग्रेड, ओके। जी तो वो ग्रेड में आके फिर हम क्या हो जाता है, 2 साल का साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज उसमें आ जाता है, तो वो छोटा होता जाता है। डॉक्टर लाइक मेडिकल या तो इंजीनियरिंग, वो 5 साल में ही, पर तुम्हारा जो प्रीवियस नॉलेज उसमें वो काम देता है, वो काम एब्सोल्युटली। करता है। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट लाइक it was easier for you to start teaching as well, like even though you didn't complete it like 10 years. जी जी, भैया एजुकेशन आई आई पर्सनली बिलीव, आई मीन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है एजुकेशन, दैट ऑलवेज मैटर्स, आई ऑल्सो बिलीव इन दैट। Yes, वो जो माहौल है कॉलेज का, वो जो टीचर्स का माहौल है, वो जो एजुकेशनल बुक्स हैं, दैट ओपन्स अप यू अ लॉट। भले ही आप उस समय इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, बट स्टिल इट ओपन्स अप। और फिर मैंने यहाँ आगरा आकर यहाँ सिखाना शुरू, एक कस्बा है छोटा सा एतमादपुर, वहाँ आके सिखाना शुरू किया। तो सैटरडे संडे वो थोड़ा सा, बहुत लिटिल मनी आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम देयर, सो दैट आई कैन फीड माई सेल्फ फॉर अ वीक। ऐसा भी होता था, और जिस वीक नहीं मिलता था, नहीं जा पाता था, उस दिन बहुत मुश्किलात भी हो जाती थी। खैर ये भी है। तो वो था। और कथा केंद्र की हाउसिंग फैसिलिटीज से मैं बहुत मुश्किल से जिस तरह से अपने आप को फीड कर रहा था। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन भी है कि अक्सर क्या होता है कि अगर सपोज हम सीसीआरटी की स्कॉलरशिप लेने जा रहे हैं या कोई भी स्कॉलरशिप लेने जा रहे हैं, तो दे हैव अ क्राइटेरिया, पहले 5 साल सीखा हुआ होना चाहिए, तब आपको कोई स्कॉलरशिप मिलेगा। व्हाट अबाउट दोस 5 साल सीखे होने के बाद तो सीखने का आपको मिल जाएगा, सीखने के लिए आपको सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल जाएगा। उन 5 सालों का क्या, जिस समय सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है सीखने के लिए, बिल्कुल। वो कहाँ से आप लाओगे? तो ये इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट वाज अ बिग क्वेश्चन फॉर मी। For you, because you are exceptional. Because you are exceptional, most of the time, like who wants to take dance as any like a classical art form as a career, or like because those scholarship is given to the like it's the young artist category, no? तो मीन्स जी जी जो बचपन से सीख रहे हैं, तो पर एटलीस्ट 5 साल होने से वो सोच सकता है कि यस आई कैन टेक डांस एज माय करियर, like I can be an artist, that's why. But you are exceptional, you started at the age of 17, मतलब जी उनको तो एक मतलब वो सही करना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 साल सीख के भी कोई आ जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से यूं तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो अगर वो ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसीलिए वो हो सकता है कि जी जी वो लोग समझते हैं कि अगर 5 साल कोई सीखे तो एक स्टैंडर्ड होगा, मतलब सभी ना आ जाए, इसीलिए। पर तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट था ये तुम्हारे लिए, पर वो तो तुमने पास कर गए, क्या जी बात जी 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 जी, it was really difficult at that time। पर somehow right, मुझे लगता है शायद मेरी लाइफ में स्ट्रगलिंग बहुत था, मैं मानता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं करता हूँ बिकॉज मेरे नहीं नहीं। इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं। तो जो बैकग्राउंड में उसकी बहुत सारी बहुत तकलीफें रही हैं, खाने पीने को लेकर भी तकलीफें रही हैं, बट आई ठीक है। थिंक those kind of struggles add up a lot in your life। यस। those add a lot, I mean स्ट्रगल के बाद आपको जो कर रहे हो उस काम की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है than the people who have never struggled and they got through the spoon। यस। तो जिन लोग को आराम से मिलता है उन लोग को शायद अपने काम की वैल्यू हो सकता है उतनी ना हो जितनी स्ट्रगल के बाद आप किसी चीज को गेन करते हो। तो बिल्कुल फॉर्चुनेटली ये स्ट्रगल को मैं बहुत फॉर्चुनेट लेता हूँ इस मामले में। बिल्कुल। नहीं नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रगल की दिक्कत तो आती ही है मुझे लगता है। तो ऐसे में जब मैं ऑनर्स कर रहा था तो मुझे मेरा डांस शायद नोटिस किया गया। 2-3 साल में ही मैंने स्ट्रांगली रियाज करके डांस को बनाया, थोड़ा सा डांस को नोटिस किया गया, और that's how I reached to the Aditi Mangal Das Dance Company। That's where my financial management came on track। तो मैंने शायद कथक केंद्र में उस समय 3 साल की एजुकेशन ही ली थी, 3-3.5 साल की, और मेरा उनकी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। क्या बात। वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हो गया, मतलब एक अच्छी सैलरी मुझे मिलने लगी। दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया, अब उसके साथ एजुकेशन कैसे कंप्लीट करूं। This was biggest task because 3.5 साल की एजुकेशन इज नथिंग। I don't believe इन 3.5 साल के एजुकेशन, आई नेवर बिलीव। एंड उस समय भी मेरे को क्लियर था कि मैं इतनी एजुकेशन में तो काम नहीं चलेगा मेरा।
मैंने 4 साल सीखा है बस। डांस एजुकेशन के बारे में कह रहे हो? डांस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। यस। और मुझे हमेशा से लगता था कि एजुकेशन का वजन बहुत जरूरी है। हालांकि कथक केंद्र की 5 साल की एजुकेशन अंडर, स्पेशली अंडर गुरुजी, इज वेरी हैवी, इट्स अ लाइफ टाइम एजुकेशन। बट मुझे फिर भी लग रहा था मुझे और अच्छे से सीखना है। तब ये था कि जैसे पुराने टाइम में तो शायद दरबारों में लोगों को फीड करते थे, कहते आप अपना रियाज करो, बाकी का हम आपकी मेहनत देखेंगे, आप मेहनत कीजिए अपने काम पर अभी ऐसा नहीं था। मुझे सीखना भी था गुरुजी से, प्लस नौकरी भी करना था एक रेपेट्री में। फॉर्चुनेटली द जॉब व्हाट आई चोज was the repertory of Aditi Didi, who is herself an institution. Yes. So working with her was receiving a good amount of education. Second thing, उसके साथ दूसरा स्ट्रगल ये था कि या तो मुझे सुबह जल्दी उठ के गुरुजी के पास जाना पड़ेगा रियाज करने और सीखने, या शाम को। तो मैं वो एक मेंटेन, मैंने 8 साल रेगुलर मेंटेन किया है। एंड दैट माय गुरुजी एंड ओनली आई नो दैट, मतलब फाइंडिंग द गुरु ऑफ दिस काइंड, इट्स इम्पॉसिबल फॉर समवन कि मैं कभी भी बोल रहा हूँ गुरुजी, एक जनरल स्टूडेंट ही हूँ मैं भी, लाइक उनके हजारों स्टूडेंट्स के जैसे, कि मैं उनसे हमेशा बोलता गुरुजी मेरे पास अभी ये टाइम है, क्या मैं आ जाऊं, क्या मुझे थोड़ा बता पाएंगे या कुछ भी हो पाएगा? तो बताने का नहीं, बल्कि वो उस टाइम को डेडिकेटेड टाइम बना देते थे और बाकी स्टूडेंट को कहते थे खड़े हो जाओ आप लोग भी। तो उस दौरान उस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया है सारी लय ताल। और सैटरडे तो मेरा पूरा गुरुजी के पास होता था, सैटरडे और संडे कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द गुरुजी। और बाकी के रोज में या तो सुबह या शाम, या सुबह या शाम, किसी भी तरह से मैं जाकर कथक केंद्र में जाके सीखते थे? कथक केंद्र में मैं कथक केंद्र छोड़ दिया था ऑनर्स के बाद। ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने कथक केंद्र में, पर इस तरह से 2007 से लेकर मैंने 11 तक इस तरह से एजुकेशन गुरुजी से ली बिना इसके। लेकिन 11 के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे शायद वापस से एक रेगुलर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन लेनी चाहिए, जो जिससे मैं वापस बंध जाऊंगा, बाउंड हो जाऊंगा कि मुझे ये डेडिकेटेड क्लास का टाइम देना ही है। फिर से मुझे वो कहते भूत चढ़ा। हालांकि मैं बिना उसके भी कर सकता था, क्योंकि टचवुड मेरा जो एक विल पावर है रियाज के लिए, वो टचवुड स्ट्रांग है। जो भी मैं सीखता हूँ वो मैं फिक्स करता हूँ अपने अलग ले जाकर उसे। तो पर फिर भी एक क्लास एटीट्यूड में मेरा सीखने का मन हुआ। और उस समय आई वॉज गेटिंग एज, लाइक 27-28 का हो रहा था। तो उस समय मैंने वापस कथक केंद्र में एडमिशन लिया। एंड आई मस्ट से थैंक्स टू अदिति दीदी, जो उन्होंने मेरे टाइम के साथ दृष्टिकोण में एडजस्ट किया थोड़ा सा। और मैंने फिर 11 और 12 में वापस कथक केंद्र किया, तक की वापस एजुकेशन ली, रोज क्लास की। तो मैं 2003 से 12 तक लगभग कथक केंद्र में रहा हूँ। उसके जो 4 साल है पूरी तरह से कथक केंद्र में नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से लगातार सीखता रहा हूँ उस 4 साल में। तो वो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन का स्पैन जो था बहुत लंबा रहा है मेरे लिए, 2003 से 2012 तक। तो 8-9 साल का रहा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अब मुझे अपने आप ही करना है। तो और सिंस देन आई एम स्टिल गेटिंग रेगुलर एजुकेशन फ्रॉम गुरुजी। अभी भी 17 साल मुझे हो चुके हैं, तो गुरुजी से है। पर यहाँ मैं ये बात जरूर मेंशन करूंगा कि मुझे ये मैं बोल सकता हूँ कि उतना शायद रेगुलर रियाज नहीं कर पाऊँ, 4 घंटे 2 घंटे, पर मैं रोज नाचने की जरूर कोशिश करता हूँ। और थ्रू रिहर्सल्स, थ्रू डांस एंड थ्रू माई डेडिकेटेड रियाज टाइम। पर मैं हफ्ते में 3 दिन अपना डेडिकेटेड रियाज का टाइम निकाल लेता हूँ। और वो ऐसा नहीं होता है कि मुझे 45 मिनट्स या 1 घंटा करना है। डेडिकेटेड मतलब बिना घड़ी के करता हूँ फिर। और जैसे दूसरा मेरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये था, आईसीसीआर ने मेरी मदद की, मेरा सिलेक्शन हुआ 2009 से। वो बोलते थे कि जाओ बाहर, पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे और सीखना था इसलिए। In 2013 I went through very fatal injuries of my knees. तो नीज में इंजरी को मुझे लगा ये हील अप नहीं होगी, और मुझे अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना है थोड़ा सा, और रेस्ट देना है उसको टू हील। तो मैं साउथ कोरिया गया, वहां पर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू काम किया, इंडियन एम्बेसी में। देयर आई रियली सेव्ड, देयर आई रियली अर्नड वेल। एंड वहां से आने के बाद आई वाज अ लिटिल स्टेबल,
फाइनेंशियली, उसने मेरी मदद किया फाइनेंशियली, और अदिति दीदी की कंपनी ने ऑफ कोर्स। वहां से आने के बाद फिर मैं अभी भी सीख रहा हूँ गुरुजी से, मैं सिखा भी रहा हूँ। और श्री राम भारतीय कला केंद्र में एक मेरी सर्टेन जॉब है, और वो भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक अच्छे गुरु की पोस्ट पे वहां जॉब दिया, व्हिच आई डोंट कंसीडर माय सेल्फ अ गुरु, जस्ट टीचर इज वेरी गुड, प्रशिक्षक इज वेरी गुड वर्ड। तो तो अभी तुम्हें वही क्या कर रहा हूँ। लगता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब एक आर्टिस्ट के नाते जब तुम्हारे पास मतलब वो एक टाइम था कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ जाओगे, जब मतलब शुरुआत में वो क्या जी। ऐसा था, या तुम बहुत ही डिटरमाइंड थे कि नहीं मुझे जो कुछ भी करना है मुझे कथक करके या तो डांस करके ही मुझे करना है, और मेरे तरफ से जो करना है चाहे वो मतलब वो रियाज शिक्षा जो भी है वो मेरा जो ड्यूटी है वो मैं करूंगा, और फिर बाद में जो फल होगा वो तो देखा जाएगा। ये सोच, ये यही मेरे ख्याल से सोच था। पर जैसे कि कभी क्या प्लान किए थे जैसे कोरिया गए कि वहां का कभी सोचे कि नहीं मुझे थोड़ा अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मतलब मिल जाए, मतलब एक स्टेबल जगह आने के लिए और मेरा दिमाग को मतलब फ्री रखने के लिए वो भी जरूरी है, ऐसे कभी सोचे थे? नहीं ये ऑटोमेटिकली हुआ? भैया मैं बिल्कुल सच सच हर एक इंसिडेंट पे आता हूँ इसमें, और मैं बिल्कुल भी इस मामले में हाइड नहीं करूंगा कि मुझे ये नहीं मालूम था मेरी मंजिल क्या थी, पर ये क्लियर था कि मैं अब डांस ही करूंगा, एब्सोल्युटली क्लियर। बिकॉज आई फील मैंने एक कहीं शायद पढ़ा था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और पढ़ने लिखने में बड़ा यकीन रखता हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, आज भी फोन के जरिए पढ़ता हूँ, बट एक यकीन रखा था कि when you start giving yourself options, that's when you get confused. यस, ट्रू, फॉर मी आई बिलीव इन दैट ओनली। या तो मैंने पहले दिन कथक केंद्र में कदम रखने के बाद ये रियलाइज कर लिया था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, और ना ही नहीं, देना है खुद को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाना सीखूंगा तो डांस के लिए सीखूंगा, पढ़ाई बिल्कुल। करूंगा तो डांस के लिए करूंगा, योगा करूंगा तो डांस के लिए करूंगा, सब पखावत सीखूंगा तो डांस के लिए करूंगा, मंजिल एक डांस ही इज है, मंजिल एक ही है, मतलब एब्सोल्युटली। हाँ ये मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी होता है। और विश्वास कि मैं जो कर रहा हूँ उससे जो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, पर मैं उससे नहीं चलूंगा, मतलब वहां स्टिक करके रखेंगे, मतलब अपने आप को रखेंगे। हाँ उसमें जो आएगा ठीक है आएगा, जी जब और कुछ ना कुछ तो बस अगर भगवान को या तो मतलब जो भी डेस्टिनी को मानते हैं तो तुम अगर फोकस करके चलो तो वो तो नहीं नहीं अच्छा हाँ, लगता है। वो ये बहुत भी बहुत एक बहुत अच्छी बात कही आप। अगर 100% कहोगे तो भगवान इतना निष्ठुर और इतना क्रूअल नहीं हो सकता कि आपको 50% भी ना दे 100 के हाँ परसेंट बिल्कुल के बदले। बिल्कुल। जिनका नसीब अच्छा है उनको हो सकता है कि 100 दे के उनको 80-90 मिल गया, ठीक है, पर तुम अगर 100% दे रहे हो ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मतलब हाँ, ये तो। और दूसरी बात, शायद मैं भैया कभी एम्बिशियस डांसर नहीं था। मैं आई नेवर बीन एन एम्बिशियस डांसर। you dance, I think you dance for yourself. मोस्टली। Yes, एंड ये रोल मॉडल शायद गुरुजी की वजह से ही रहा कि उन्होंने कहा पहले खुद के लिए तो नाच ले, दुनिया को क्या दोगे। बिल्कुल अगर अपने आप को कंटेनमेंट नहीं है, अपनी एनर्जी को तुम दूसरों में ट्रांसफर करते हो, तो दूसरों को क्या दे पाओगे जब तुम्हारी एनर्जी अपने आप में प्योर नहीं बिल्कुल। है। खुद तो तो खुश होना है तब जाके लोग खुश होंगे ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कभी बहुत एम्बिशियस नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। अभी ये नहीं कहूंगा कि अब नहीं हूं, अब थोड़ा सा शायद एम्बिशन है उसको अनदर लेवल पे ले जाने की, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई। यही वजह है कि शायद मैं कभी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं लोगों को बोलता हूँ, दे डोंट नेवर बिलीव, आई हैव नेवर सेंट एनी बायोडाटा टू एनीवन। आई हैव नेवर एवर इन माय लाइफ हैव सेंट एनी बायोडाटा टू एनीवन। किसी भी तरह का बायोडाटा नहीं भेजा है। जब आया है, किसी ने पूछा है कि आप करोगे, मैं करूंगा, तो कहते हैं तो बायोडाटा भेज दो। उस तरह से मैंने बनाया है, क्या पर बात। मैं कभी चांस नहीं हुआ। और शायद इसलिए the things what I'm supposed to get at the age of 25-30 I'm getting after 35, very frankly। उसका कोई मलाल भी नहीं है, क्योंकि हम्म
जब जो होना होता है वो मिलता है, बस पर बस। मैं नाचने को स्टेज अब पे बस लाता सही हूँ है, मेरे हाँ। दीदी के जरिए। मतलब अपने आप में एंड खुश रहना सबसे जरूरी बात है। जी जी जी। नहीं नहीं, वो और बात मैंने तो। हमेशा से उसमें बिलीव किया, आज भी शायद मैं स्टेज पर भी नाचता हूँ तो अब शायद पब्लिक को लेकर चलना आ रहा है, लेकिन शायद मैं ज्यादातर अब स्टेज पर नाचता था तो अपनी धुन में ही करता था मैं बहुत समय तक। तो नहीं। but finally I don't disagree with the fact that it's a performing art. So या। finally it is supposed to go on stage and people यस should look. यस यस। एंड एक अगर आप उसे एक कमरे में सीमित करके रखते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो भी आप सेल्फिश है मुझे लगता है। उसके कमरे में सीमित करके मत रखिए, लेट द पीपल सी व्हाट यू हैव डन। इफ इट इज ऑन ट्रैक इट विल टेक इट्स ओन प्लेस, इफ इट इज नॉट ऑन ट्रैक देन देखा या जाएगा। या। नो नो, तो वेरी नाइस। ये मेरा हमेशा से बिलीव था। और रही फाइनेंशियल स्टेटस की बात, तो मैंने कभी ये सोच के उस समय नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि मुझे इतना जरूर थी मेरी इच्छा कि मुझे खाने को मिलता रहे ब्रेड एंड बटर। एम्बिशियस नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कि मुझे आज फलानी जगह ये खाना है, परसों मुझे वो खाना है, मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं। ऐसा कभी था ही नहीं, और मैं आज भी ऐसा नहीं हूँ। थोड़ा आप कह सकते हैं फकीरी मिजाज बिल्कुल। थोड़ा सा रहा हूँ। पर नहीं, बाबा मुझे टाइप भी रहा हूँ। ऐसे ही कुछ है पर मैं थोड़ा मतलब यहाँ ऐसे ही मन से तो ऐसे है, पर क्या है कि अपना जो कला है ना, मैं जी जो भी करता हूँ सच में, मैं अभी मतलब सबके सामने मैं, क्योंकि मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि वो मेंटेन करे, क्योंकि मेरे लिए ना डांस एकदम उनका जो जगह है वो एकदम अलग जगह है। और ऐसे ना सोचे लोग कि डांस करे इससे और क्या हो सकता है, इसके लिए मतलब इसके लिए कुछ मतलब एक एक मतलब मेंटेन करना मेरे ख्याल से मतलब मैं समझता हूँ कि एक जरूरी होता है, ताकि लोगों को नजर में डांस के जो मतलब सम्मान है, वो मैं कोई नहीं हूँ। जी मतलब डांस का जो सम्मान है वो तो है, वो क्योंकि वो मैं और तुम मतलब हम कोई नहीं होते हैं कि उनका सम्मान को मतलब वो नहीं है। पर समाज में जो होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे डांस करते हैं तो इससे और क्या कैसे गुजर सकते हैं, तो इसीलिए मैं कभी कभी मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि मन में जो फकीरी जो है वो तो है, वो अंदर अंदर है, पर फिर भी बाहर से वो मतलब जैसे कि सब लोग है, ताकि ऐसे ना हो जाए कि ये करियर लिए तो बाकी जो है जो फ्रेंड्स जो मतलब नॉर्मल एजुकेटेड और सर्विस पर्सन है, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बिलोंग करते हैं, हम भी उसमें उससे मतलब उसे उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं, पर उससे एकदम ऐसे नहीं कि हम उसके लायक ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे विश्वास है डांस का वो क्षमता है, वो भी है। जी हम जी जी हाँ, डांस का जी। ये तुम्हारा हाँ मेरा मेरे बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आज हम लोग सब कर रहे हैं वो तो बस डांस के द्वारा ही हम लोग करते हैं ना। तो एक भी कुछ भी हो रहा है आज, चाहे ये जो मतलब कोरोना की वजह से इतने लोग इतना सफरिंग सब सब कुछ, और अगर तुम हम सब अगर किसी को थोड़ा भी हेल्प कर सकते हैं तो वो भी तो डांस के द्वारा ही हमको मिला है, तभी जाके हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ भैया, ये तो मैं इस फैक्ट, तो ये तो आपने बहुत फैक्ट कहा है। फकीरी मिजाज का मतलब ये होता है, मुझे मेरे हिसाब से फकीरी मिजाज ये नहीं है कि मैं हिमालय पे जाके साधु बन जाऊं या नहीं बाबा नहीं बनकर बैठ जाऊं। नहीं। क्योंकि जिस आर्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, इतना कुछ स्ट्रगल सहे है या इतना कुछ गया हूं, अगर मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सका तो वो भी गलत है। हाँ, वही वही मैं तो बोल रहा हूँ। दैट्स वेयर आई एम कमिंग, लाइक अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ही पुअर है या बहुत ही उसका पैशन है या बहुत ही नहीं पे कर सकता है, देन आई कंसीडर हिम, आई टेक हिम एंड आई टीच देम विदाउट एनी, विदाउट बिल्कुल। टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम देम। पर जो इतना भी कर सकता है, मैं उससे कहता हूँ यू हैव टू पे, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू। यस You यस, are दैट्स आई एम टेलिंग। earning something, you should pay. यस 100% you should pay. And for me also, if I am imparting something, that is supposed to be get paid. You know, यस otherwise we are यस not respecting something what we have यस। achieved or we have earned. हाँ हाँ, ये यही मतलब इतना यही मुश्किल में तो ये वो जरूरी भी होता मुझे है लगता आज है कि मतलब रेस्पेक्ट के लिए। हाँ,
क्योंकि उस उनका आर्ट एक को सम्मान है ना। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कला का एक सम्मान होता है ना, और हम तुम मतलब उसमें कुछ उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, पर जैसे उन वो हमारा जिंदगी है, तो उसको भी तो एक मतलब हमारे तरफ से वो फाइनली रिस्पेक्ट। यही है, फाइनली यही है ब्रेड एंड बटर। हाँ वही और तो। मैं ये मानता हूँ कि मैं बीएमडब्ल्यू में चलना नहीं चाहता, बीएमडब्ल्यू में चलने की एम्बिशंस नहीं है, पर अगर मेरे पास अगर छोटी कार हो जिसमें मैं हारमोनियम तबला रख के किसी दूसरी जगह जा सकूं और 2 लोग को ले जा सकूं, तो वो भी बुरा नहीं है सोचना। बिल्कुल, मैं ये मैं भी भी लगता है एकदम मुझे। ऐसे ही सोचता हाँ, ये मुझे हूँ। प्रिपेयर रहना चाहिए, मैं कथक डांसर हूँ, बीएमडब्ल्यू तो नहीं मिलेगी मुझे। हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। तो हाँ, पर पर मेरे पास एक कार ना हो, इतनी बारिश में ना एम्बिशन भीगे, नहीं करता। बारिश में ना भीगे, या तो ट्रेन में सफर करना नहीं चाहिए, ताकि अगर कॉस्ट्यूम भी पहन के जाना पड़े तो एक एक मतलब एक छोटा सा होने से बिल्कुल ये बहुत सोच। जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। दैट इज द रिस्पेक्ट टू द आर्ट, यस। and I think people should also come forward to respect that. How हम्म। they will come, that I think somehow most of the artists have to take the responsibility to train them for this, कि कला को अभी तक इस प्रोफेशन नहीं समझ पाए हैं। मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ, गाँव वगैरह में तो छोड़ दीजिए, तो अभी भी ये मुश्किल मुश्किल तो है। हाँ, ये जरूर था कि कोरिया जाते टाइम मेरी पहली इच्छा ये थी कि मैं अच्छे पैसे अर्न करूंगा विदाउट वर्किंग टू मच, विदाउट वर्किंग इन द सेंस फिजिकली। मुझे मेरे नी को रेस्ट चाहिए था, हील करना चाहिए था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे उस तरह की अभी रेपिटरी जॉब मैं जिस तरह से दीदी क्या कर रहा था वो मैं नहीं कर सकता हूँ। 10:30 से 5:30 तक डांस नहीं कर सकता। आई नीड रेस्ट फॉर अ ईयर, मे बी हल्का फुल्का रियाज करके उसको जिंदा रख सकता हूँ, बहुत काम नहीं कर सकता हूँ। पहली अप्रोच ये थी। दूसरी अप्रोच, मैं फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, विच इज नॉट रॉन्ग। फाइनेंशियली यस, एस्टेब्लिश हो डेफिनेटली नॉट जाऊंगा, रॉन्ग, शायद मेरे डेफिनेटली को नॉट रॉन्ग। अगर अपना कुछ प्रोडक्शन बनाना है तो शायद मैं उस पर इन्वेस्ट कर बिल्कुल, पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये भी था, और मुझे भी लगता था एक जो 25 में फकीरी थी वो शायद 30 के बाद आके बदल गई। 30 के बाद एम्बिशंस थोड़ी सी बढ़ी, मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूंगा, एम्बिशंस बढ़ी, क्योंकि अब मुझे ये यकीन हो गया था कि आगे और कुछ नहीं है इसके अलावा, और जब मेरे नी मुझे धोखा दे रहे हैं तो मैं करूंगा क्या। आई नीड, फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली आई नीड फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। मैं कैसे करूंगा, मेरे तो नहीं साथ छोड़ रहे हैं, मुझे तो उम्र का बुढ़ापे का इंतजार ही नहीं करना पड़ रहा है, तो इस बड़ी जवानी में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डर बैठ गया था, तो आई नीड समहाउ कहीं ना कहीं से एक फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट चाहिए था। तो मैंने ये जॉब किया। उस जॉब करने के दौरान मैंने रियलाइज किया कि नहीं, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर एन आर्टिस्ट। फकीरी जो थी वो चल गई, फकीरी काम में रहनी चाहिए, यानी आपको एक अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल, रियाज के लिए ईमानदार होना चाहिए। नाचते टाइम आप उसको एक फकीरी वाले अंदाज में सोच सकते हैं, आपको अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन this financial aspect is equally important. I would not dance for the free for anyone. That's when I बिल्कुल। realized I would not teach to the students who takes it very casually or for granted यस, because they don't want यस। to pay or they are paying very less amount of money. मैं 50 स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा, 5 स्टूडेंट बनाऊंगा, लेकिन 5 स्टूडेंट को ठीक से या तो सिंसियर हो तब हो, और जब वो पे करेंगे तो शायद उस काम को भी सिंसियरिटी से लेंगे। वेरी गुड। तो ये एक सिस्टम मैंने अपना डेवलप किया आने के बाद कोरिया से, और which was very very important, and I think parents and students and upcoming students is also supposed to understand the way I was struggling to pay for dance, to pay Kathak Kendra, to pay train fare, to pay my food। वो जो उसने मेरे को जो रेस्पेक्ट करना डांस को सिखाया, वो आई थिंक सबको सीखनी चाहिए पे करके। यस, वो यस। सबको सीखना चाहिए। आज वो फ्री परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए आप लोग बहुत कुछ करते हैं, एक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं करते हैं, जिसको आप डांस को मैं एज स्पिरिचुअल लेता हूँ। तो आपको एक खूबसूरत चीज के लिए, और स्पिरिचुअल के अलावा मुझे लगता है एक अपनी चीज के लिए, जो आपका अपना है उसके लिए क्यों नहीं करते हो। जो आपने बोरोड किया, अगर आपका ओपेरा कोई शो आ जाएगा तो इतने सारे ओपेरा लवर निकल आएंगे, इंटेलेक्चुअल्स निकल आते हैं ओपेरा के लिए 5-5 हजार के टिकट लेने के लिए। आई रिमेम्बर आई वाज वेरी यंग बाय दैट टाइम, देयर वाज अ म्यूजिशियन, ग्रीक म्यूजिशियन, यानी,
he came to India और वो आगरा आया था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, ताजमहल के पीछे उसका शो हुआ था। अरे बड़े ही सारे तुर्रम खान from the Bollywood, with so many intellectuals, so many writers, they bought at that particular time, I'm talking about like 20 years back, over 20 years back, 21, 22 years back, they bought ticket for 5,000, 10,000 that time, 20 years back for his show. तो मुझे लगा कि यार ये लोग बाहर वालों के लिए खरीद सकते हैं टिकट, अपने लिए 100 रुपए का टिकट खरीद के नहीं जा सकते। लेट देम अंडरस्टैंड द वैल्यू। अगर वो 100-200 का टिकट लेके जाएंगे तो शायद मेरा परफॉर्मेंस 1 घंटे का हो तो देखेंगे, नहीं टिकट लेके जाएंगे तो दे कैन स्नीक आउट इन बिटवीन द परफॉर्मेंस। वही तो मतलब दैट्स वेयर आई थिंक दे शुड लर्न। और एक मामला मतलब वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि जो मतलब परफॉर्मेंस में टिकट होना कितना जरूरी है, डेफिनेटली। तो पर ठीक है, तो और क्योंकि हमारा टाइम भी मेंटेन करने चलने पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जैसे कि अभी ये फेसबुक जो ऑनलाइन ये जो भी सब हो रहा है, मतलब ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं, ये मुझे पता है, पर फिर भी मैं क्यों इस डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ, इसलिए ताकि जिनको लगेगा कि हाँ इससे मुझे कुछ सीखने को लिए शायद मिलेगा, कुछ रास्ता मिल सकता है, वो देखेंगे। क्योंकि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो अगर किसी को लगे सुनते सुनते कि हाँ ये अच्छा हो रहा है, तो वो सुनेंगे। तो इसीलिए डेफिनेटली टाइम का पाबंदी तो है, पर फिर भी मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। और खास करके जो एक मतलब अगर किसी का चाहत होता है तो वो किसी ना किसी तरह से कैसे वहाँ उसको मतलब सक्सेसफुल करते हैं, वो शायद मतलब ऐसी बातचीत में मतलब सबको सीखने को लिए मिलेगा। तो थैंक यू धीरेन्द्र। एंड end of the day, like I just wanted to ask you, like do you have any suggestions for the upcoming generations? I think अगर वो पैशन और पेशेंस के साथ चीजें कर रहे हैं तो सबसे पहला वो वक्त इतना देते हैं, मुझे लगता है वो मीडियोक्रेसी को प्रमोट ना करें भैया। अगर आपको मेहनत करनी है तो सच्ची मेहनत करें और अच्छी मेहनत करें। I believe like if I'm going to the cloth market, if I have to find the right cloth, I'll go to the right shop जहाँ पे मटेरियल अच्छा होगा, जहाँ पे चीज अच्छी होगी, मैं वो खरीदूंगा। तो आप अपने आप को एक अच्छा, अगर आप एक प्रोडक्ट और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो आप अपने आप को एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे डेवलप करें। डू नॉट प्रमोट द मीडियोक्रेसी कि आपने 5 ठुमरी डांस कर ली, मैं तो ठुमरी ही कर सकता हूँ क्योंकि आपकी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, या तो मैं टेक्निकली ही कर रहा हूँ और कोई एबिलिटी नहीं है। प्रिपेयर योरसेल्फ, टेक टाइम, बी पेशेंट, कीप पेशेंस, अपने पेशेंस को सही डायरेक्शन दे, और आई थिंक थोड़ा वक्त दे अपने आप को, मतलब अपने कला को सीखने के लिए वक्त दे। ये 5 साल में आने वाली चीज नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से तुम्हारे इस बातों में मैं बहुत साल पहले मैंने भी मतलब ऐसे कि मैंने देखा था दिस पी इज वेरी इंपॉर्टेंट। P plus for like patience and passion. P for passion, P for patience, like a P for practice, P for even like presentation. So everything is very important. Perfection. So Perfection. so मैं वही कह रहा हूँ, अगर यही दोनों नहीं है, you can be peaceful. The peace is also coming by P. Peace is also comes by P. वाह भैया, आपने तो इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया है, मेरे लिए नया सबक हो गया ये तो। नहीं देखो, नहीं सच में कि कितना पीसफुल, मतलब और ये मैं बहुत साल पहले एक बार लिखा था, मतलब प्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस परफॉर्मेंस like something like I forgot, but this like regarding this P, like practice, performance, peace, patience, everything, passion. patience, So many everything matters for a dancer, for an artist. Wow, it's incredible. Yeah. Seriously. So हाँ, सबका कॉम्बिनेशन इक्वल जरूरी है, बैलेंस। तो yes. मे बी मीडियोक्रेसी को प्रमोट ना करें, असली मेहनत करें। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे परफॉर्मेंस के लिए इतना फीस चाहिए, या अगर मैं कहता हूँ मेरे पास सीखने आ रहे हो तो मुझे इतना फीस दो,
So you should ask yourself, are you able to ask for that? Yes, yes, You should be able to see yourself in mirror yes, कि am I able to receive that much from someone? yes, yes, yes. Am I capable enough for this? तो उस अगर शीशे में देखना है तो आपको अपने आप को मेहनत करके बनाना पड़ेगा, तैयार बिल्कुल, करके, क्योंकि आपने वही चुन लिया मतलब है वो फील्ड। तुम जो प्रोडक्ट के बारे में बोला ना, वही मतलब प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग बाद में होता है। पहले प्रोडक्ट अगर अच्छा हो ना, तो पैकेजिंग को लेके फिर भी पीई आ गया। मतलब पैकेजिंग देख के उस प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं जज करता है। इनिशियली तो ये लाइक वो जज हो सकता है इनिशियली, हाँ, पर पैकेजिंग से नहीं बनता है। अगर प्रोडक्ट को सस्टेन करना है तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और इसी अच्छा होना चाहिए। हाँ, Yeah. और तभी जाके Yeah, उसका जो absolutely. प्राइस होता है ना, देखो फिर वो, अरे ओ माय गॉड, बातों बातों में कितने सारे पी आ गए, प्राइस भी उसी से ही बनता है। प्राइस भी प्रोडक्ट से ही बनता है। हाँ, कभी कभार मुझे लगता है मुझे लगता है कभी कभी मैं सोशल मीडिया पे कभी कभी अपनी चीजें डालता हूँ रेलेवेंट करके, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया, बट रेलेवेंट करके मैं जरूर डालता हूँ सोशल मीडिया पे। पर मुझे अभी शुरू किया है ये मैंने कुछ ही दिन से, पर मुझे शायद भैया बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी सोशल मीडिया की शुरुआत में। उसके कारण ये था कि शायद माउथ पब्लिसिटी, जो आपने कहा ना प्रोडक्ट के लिए, मैसूर सैंडल सोप इज द मोस्ट पॉपुलर सोप ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन है, पर उसके आप एड ज्यादा नहीं देखेंगे। बिल्कुल माउथ पब्लिसिटी क्वालिटी कभी कभी वो काम करती है। बिल्कुल, प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा ना तो हो पूरी तरह सकता से है। नहीं कहूंगा, उसका एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है, पर हाँ, पूरी तरह से नहीं कहूंगा। एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, बट उसका एक एक्सटेंट है यस, शायद। यस, अब एडवर्टाइज हो गया और क्वालिटी निकली यहाँ। 5 बिल्कुल दिन नहीं। तत्कार का रियाज करके आपने वो 2/3 ज्यादा तत्कार के ऊपर ज्यादा तैयार दिन, करके डाल वो दी, एक बार 5 दिन लोग, चल। एक बार लोग खरीद देंगे, एक बार देखेंगे, बाद में नहीं देखेंगे। एब्सोल्युटली, नहीं नहीं, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। तो टू तो अगर सस्टेन सही है तो you हम have सही to तरह से। have, yeah, to sustain, like you have to have the product solid. एब्सोल्युटली। Yes, so तो thank वही you यंगस्टर्स Dhirendra. के लिए सॉलिड प्रोडक्ट बने। Yes, और हाँ। मैं खुद यंगस्टर हूँ एनीवेज, मैं खुद यंगस्टर हूँ नहीं अभी, नहीं, अब जो इस नहीं सॉलिड नहीं, बनने की सबका जर्नी में ही नहीं। हूँ मैं। देखो ये दूसरी तरह से भी अगर मतलब, क्योंकि सब देखे, मेरे ख्याल से जब तुम्हारा ये होगा, इससे पहले तो सारे बड़े गुरु लोग, गुणीजन का सबको हो चुका होगा, क्योंकि सारे मैं पब्लिश कर चुका। पर उसमें हर एक ने वही ऐसे ही बोला कि जो मतलब रियाज, डेडिकेशन, पेशेंस, यही यही है मेरे ख्याल से एक कलाकार की जो सक्सेस होता है। सब यही की, दीज आर द की वर्ड्स। इससे आगे पीछे कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं भैया होता है। एक चीज में आई थिंक आई वुड लाइक टू Add. ऐड अप वन थिंग, वेरी स्मॉल थिंग। आई थिंक बहुत इंटेलेक्चुअल होना है ना, मुझे क्लिक नहीं करता। आई डोंट नो, आपके पास इंटेलेक्चुअल बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, बहुत आइडियाज हैं, बट इफ दैट इज नॉट कमिंग इन प्रैक्टिकल वे, इट इज Not going to work. वर्थलेस। It is बी not going to मोर work. इंटेलिजेंट, जो है उसको थोड़ा है, बट उसको इनपुट आप अपने काम में कैसे करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मे Important बी है। इंटेलिजेंस इज बेटर देन इंटेलेक्ट, आई Yes. पर्सनली बिलीव। Yes, no, no, you're absolutely right. Because see, if you have a sound like a knowledge, then whatever you will do through those knowledge, you can produce anything, and that will be up to a certain level, definitely. मतलब उसका एक स्टैंडर्ड होगा ही होगा। हाँ, पर अगर तुम्हारा जो मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, उसको तुम इंटेलेक्ट से कितना आगे बढ़ा के नहीं, वो होता नहीं। वो तो इंटेलिजेंस तो वही है, अपने आप को फूंकना और झोंकना पड़ेगा। तो ये रियाज, अभ्यास, ये जो वर्ड है शायद उसी से आते हैं। जितना भी दिमाग में आ रहा है एटलीस्ट इनपुट करो अपने अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर तुम सोच रहे हो कि बहुत तत्कार होना है, पर तुम्हारे पैर से तो ताती तीतर निकलना है ना, बहुत सारे हैं, ऐसा तो होता है। वो तो आएगा 3.5 तुम्हारा रियाज से। वो तो उससे आएगा ना। वो म्यूजिकली तुम उसका इफेक्ट दे सकते हो, पर वो आने के लिए तो तुम्हें रियाज करना पड़ेगा, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, एनीवे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग थैंक योर यू, टाइम। नमस्ते, थैंक्स टू इनवाइट एंड लिसनिंग टू मी एंड really overwhelmed, and thank you so much and lots of respect to you, as I'm a great admirer of you, always have been.
So Like thank you so much. it comes by generation after generation. Like I am great admirer of your Guruji, and so Uh, it comes like that only. Yeah. That's how, So yeah, yeah. change. Okay. Thank you.